नमस्कार, डीजी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे अभी तक की हेडलाइंस के साथ। संसद से चुनाव आयोग तक विपक्षी गठबंधन के मार्च पर भाजपा का पलटवार। किरेन रिजिजू ने कहा, विपक्ष को देश की संवैधानिक संस्थाओं पर नहीं भरोसा। वहीं भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी को बताया संविधान विरोधी काम करने वालों का सरगना। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर लगाया संसद का बहुमूल्य समय बर्बाद करने का आरोप। कहा, अब हम अहम बिल कराएंगे पारित। लोकसभा में राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में किया सांसदों के लिए नवनिर्मित 184 आवास का उद्घाटन। पहली और दूसरी बार के सांसदों को मिलेंगे घर। पीएम ने परिसर में लगाया सिंदूर का पौधा। धराली आपदा के बाद जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। गंगनानी को जोड़ने वाले लिमचड़ीगाड़ पुल पर आवाजाही शुरू। उत्तराखंड के सीएम ने कहा, बिजली और मोबाइल नेटवर्क बहाल। सड़क संपर्क बहाल करने को बताया प्राथमिकता। और बीएसएनएल ने डिजिटल कौशल पहल को लेकर एरिक्सन, क्वालकॉम, सिस्को और नोकिया के साथ किया करार। जबलपुर में बनेगा वैश्विक स्तर का कौशल केंद्र। 5G और साइबर सुरक्षा पर शुरू होंगे कोर्स। पूर्वोत्तर में डिजिटल स्किल मिशन को मिलेगा बढ़ावा। बिहार में वोटर लिस्ट गहन पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी को लेकर इंडी ब्लॉक ने आज प्रदर्शन किया। मार्च कर रहे इंडी गठबंधन के नेताओं की पुलिसकर्मियों के साथ नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि जहां एक तरफ राहुल गांधी समेत कई इंडी नेता चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग द्वारा आरोपों को लेकर मांगे गए दस्तावेज पर चुप्पी साधे हुए हैं। वहीं इसी लेकर बीजेपी समेत पूरी एनडीए हमलावर है। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। And therefore, I would want this discussion. Please go back to your seats. Please, Mani Mantri ji, please come. So, taking up the Manipur budget bill. Mani Mantri ji की बातें ही रिकॉर्ड पे जा रही हैं. Please go. Taking the GST, Manipur GST ordinance to be converted to an act, and also the budget are both very critical to the state of Manipur. And since I'm happy to see the opposition come back into the House, I would expect them to participate in this and allow the Manipur appropriation bill and allow the GST Manipur ordinance to be passed as a law, and respect that we have to have this constitutional duty performed. I would like the opposition, which has taken a lot of interest in Manipur otherwise, to take interest even now and allow Manipur to receive its money, which is its due. And therefore, I would appeal to the opposition to stop their protest at least now and deal with the constitutional responsibility that we have. So, therefore, on the GST Act, it is more looking at conversion of a ordinance into a bill, and therefore the bill is before us. We need to pass it to make it into an act, or else Manipur will not be able to raise revenue under the GST. Although all over the country, all states have passed this amendment, we are waiting for the ordinance to become a law. The other is the Manipur budget appropriation. It is a very important thing. I like to put it on record that Prime Minister Modi has ensured that Manipur's development does not suffer, but at the same time, the internally displaced people who are in the camps, some of them have gone back to their villages, many of them who are living in the camps should be given assistance, and that is why what we have provided for is worth mentioning. 2,898 crores for Manipur from Government of India is being factored in this budget. 2,898 crores. Of this amount, sir, 1,600
created, jobs will be provided, and as a result, the state will have its economy revived. And 1,231 crores would be spent on revenue head. I would like to expand on this a bit. Additional allocation which is being given will support immediate requirements such as the internally displaced persons rehabilitation will get 523 crores so that people in the camps can be rehabilitated. Second, security related expenditure will be 542 crores. Deployment of the CAPF, Central Armed Police Force, is another 500 crores. So I think it is very important that these are taken on board. More important is the fact that for long-term sustainability of Manipur's public finance, Government of India is allowing Manipur to prepay its high-interest loans. The loan burden on Manipur is being reduced by asking them to repay all those high-interest loans. For that, 633 crores is being provided, so that the state doesn't sit with heavy cost loans. Second is additional support is being provided through the state special assistance for capital investment, and that is 700 crores is being given. That 700 crores is for 50 years without interest. So Manipur's development will ramp up and speed up, and therefore this budget looks at these important matters. Sir, the revenue receipts are being kept at 21,439 crores. This is 21% lower than the vote on account figures because that was presented in March 2025. We have a realistic picture now. Above all, sir, the last that I'd like to say in conclusion is fiscal deficit is at 3.5% of GSDP compared to 3.4% during vote on account. No point of order in this order, please. No point of order in this order. 3.7% in pre-audited actuals of 24-25. So total outstanding liabilities are budgeted to be 37% compared to the pre-audited 39.5% of the GSDP. It is one of the progressive and confidence-building budget. I wish the House can pass it. Thank you. I shall now put the motion regarding consideration of the Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill 2025 to vote. The question is that the Manipur Goods and Services Tax Amendment Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken to consideration. Those in favor, please say aye. और जैसा कि आप जानते हैं 7 तारीख को लोकसभा में मणिपुर जीएसटी संशोधन विधेयक पास किया जा चुका है। इस समय राज्यसभा में उसे पारित कराने के लिए उस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपनी बात रख रही थी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर कांग्रेस पर सदन नहीं चलने देने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब तक सत्र का बहुत समय बर्बाद किया है, लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। किरण रिजिजू ने कहा कि हम आज दोनों सदन में महत्वपूर्ण बिल को पारित कराएंगे और यही कारण है कि आप देख रहे थे कि राज्यसभा में मणिपुर को लेकर जीएसटी बिल को सदन में रखा गया। ने बहुत समय बर्बाद कर दिया। मानसून सत्र में कांग्रेस पार्टी और अपोजिशन ने बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब हम देश का समय और पार्लियामेंट का समय को और बर्बाद होने नहीं देंगे। तो सरकार महत्वपूर्ण बिल को पारित करना चाहते हैं। आज हम इम्पोर्टेंट बिल्स दोनों लोकसभा राज्यसभा में हम पारित करेंगे। एक आदमी का नासमझ और एक परिवार का वजह से देश इतना नुकसान नहीं झेल सकता है। पार्लियामेंट को रैंसम में नहीं रख सकता है। हम बिल पारित करेंगे, आप चर्चा में हिस्सा लीजिए। कल को मत बोलिए कि उनको चर्चा में बोलने नहीं दिया, माइक बंद कर दिया। ये फिर झूठ बात फैलाना नहीं है, क्योंकि हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इम्पोर्टेंट बिल्स में हम चाहते हैं कि सब एमपी बोले। किरण रिजिजू ने इंडी गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि चुनाव आयोग ने हर पार्टी से 2 सदस्यों को बुलाया है, लेकिन इनमें से किसी भी पार्टी से कोई गया नहीं। उन्होंने कहा कि विपक्ष को चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने
ये इंडी गठबंधन को बोला कि हर पार्टी से 2-2 सदस्य को भेज दो, 30 सदस्य को बुलाया, फिर जाता नहीं है। वो उनके गठबंधन में, इंडी गठबंधन में वो तय नहीं कर पाया कि वो 30 लोग कौन कौन जाएंगे। खड़गे जी बोल रहे हैं कि सारा अपोजिशन मेंबर जो वीआईपी है, तो 150 लोग क्या इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन, कमिश्नर का रूम में 150 लोग घुसेंगे क्या? ये कैसे बातें करते हैं? बोलते कि सबको जाना है। इलेक्शन कमीशन ने इतने अच्छे तरीके से 30 लोगों को बुलाया, प्रतिनिधि बात करेंगे। अब ये कांग्रेस वाले, ये इंडी गठबंधन को सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं है और कहते कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी नहीं कर सकते इनके ऊपर में। इलेक्शन कमीशन में भरोसा नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अटैक करते हैं, पार्लियामेंट को विश्वास नहीं करते हैं। हमारा देश के जितना जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको प्रहार करते हैं। तो ये किसके इशारे में और क्यों भारत का छवि को नुकसान कराने के लिए बार बार हर दिन ये नाटक क्यों करते हैं? भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान ने आज कांग्रेस और उनके नेताओं पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लाडले राहुल गांधी का लोकतंत्र और संविधान में कोई विश्वास नहीं रह गया है, इसलिए जब कांग्रेस चुनाव जीत जाती है तो राहुल गांधी कहते हैं कि जनता का समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, वहीं जब कांग्रेस चुनाव हार जाती है तो कहते हैं कि सब जगह भ्रष्टाचार हो रहा है। कांग्रेस और राहुल गांधी का दोगलापन आज जनता के सामने आ गया है। दिशाहीनता की और दुविधा की समूह कांग्रेस पार्टी और उसकी नेता राहुल गांधी बन चुके हैं। लोकतंत्र में उनकी कोई लोक लाज बची नहीं। अराजकता धीरे धीरे अहंकार के साथ मिलते हुए देश में एक अस्थिरता पैदा करने की एक सोची समझी रणनीति ये है। आप चुनाव जीतोगे तो सारा विषय सही है, अब चुनाव हारोगे ये सारा विषय की अव्यवस्था आपको ध्यान में आती है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले झूठ बोलती है, कभी महाराष्ट्र, कभी बिहार, कभी चुनाव आयोग, कभी ईवीएम और कभी कुछ और, लेकिन कांग्रेस को खुद ही अपना मुद्दा स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस केवल और केवल सत्ता और चुनाव में जीत के लिए जनता में कोई भी झूठ फैलाने से बाज नहीं आती है। कांग्रेस के पास न तो कोई मुद्दा है और न ही कोई देश हित के लिए कोई विजन। कांग्रेस पार्टी अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण एक बैंकरप्सी की स्थिति में पहुंच चुकी है। कोई स्पष्ट मुद्दा हाथ में नहीं है, कोई नीति नहीं है। एक रिएक्शनरी फोर्स के नाते ये लोग अपने राजनीतिक कार्यकलाप बना रहे हैं। पहले इन्होंने ईवीएम को मुद्दा बनाया था, फिर राफेल पे झूठ बोले, फिर सीमा के ऊपर चाइना के साथ हमारी डिस्प्यूट को चाइना के साथ दिए, भारत की सेना को, भारत की संप्रभुता को इन्होंने प्रश्न उठाया, जिसके बारे में न्यायपालिका ने शायद आजाद भारत में कोई राजनीतिक व्यक्तित्व के ऊपर इतनी कटु टिप्पणी दिया होगा। और एक बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर भारत ने एक बार फिर पलटवार किया है और विदेश मंत्रालय ने बहुत साफ कहा है कि परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। एक लंबे समय से पाकिस्तान भारत को हमेशा से परमाणु बम की धमकी एक गीदड़ भभकी देता रहा है, जिसका खुलकर भारत ने एक तरह से विरोध किया और विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को एक बार फिर जवाब दिया है। परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है और भारत पे पाकिस्तान की इस परमाणु धमकी का किसी तरह का कोई असर नहीं है और भारत ने पुरजोर तरीके से पलटवार किया है। चंद्रशेखर जोशी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। चंद्रशेखर, विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर इस बात को दोहराया है, सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर की इस धमकी को धता बताते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत है।
बिल्कुल, देखिए ये जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उनकी ओर से जो बयान दिए जा रहे हैं उसको लेकर के ये बयान आया है भारतीय विदेश मंत्रालय का। और इसमें साफ तौर पर कहा है कि भारत किसी भी तरह की जो परमाणु ब्लैकमेलिंग है उसके आगे झुकेगा नहीं। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है उसको भी ये देखना चाहिए कि जिस तरह से बार बार ये परमाणु धमकी दी जा रही है, उससे ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो परमाणु हथियार हैं वो किन लोगों के हाथ में है। वो पाकिस्तानी आर्मी के हाथ में है, और पाकिस्तानी आर्मी का जो संबंध है वो आतंकवादी समूहों से है। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखना चाहिए कि कितने जिम्मेदार ये लोग हैं और कितना इन लोगों के हाथ में जो परमाणु हथियार है उनका होना है, क्योंकि जिस तरह के ये बयान आ रहे हैं साफ साफ। और ये भी कहा गया है कि इस तरह के जो बयान दिए जा रहे हैं वो तीसरे देश की धरती से दिए जा रहे हैं, जो एक दोस्त मुल्क है वहाँ से इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। तो इसको काफ़ी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और इसमें ये कहा गया है कि भारत पहले ही ये साफ कर चुका है कि भारत किसी भी तरह से जो परमाणु ब्लैकमेल है उसके आगे नहीं झुकेगा। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि वी विल कंटिन्यू टू टेक ऑल स्टेप्स नेसेसरी टू सेफगार्ड आवर नेशनल सिक्योरिटी। हमारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा है उसके लिए हम हर कोई कदम उठाएंगे, ये भारत की ओर से कहा गया है। दरअसल इस तरह के जो बयान हैं, ये बयान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका की धरती पर जाकर के इस तरह के बयान दिए हैं। फ्लोरिडा में उन्होंने कुछ बयान दिए हैं। वो बयान काफ़ी सुर्खियों में है, मीडिया में भी वो छपे हैं, जिसमें उन्होंने परमाणु धमकी भी दी है। और उसी को लेकर के ये भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से ये बयान आया है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि भारत किसी तरह से परमाणु ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेगा। और इसका जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो परमाणु हथियार हैं वो किन लोगों के हाथों में हैं। जिन लोगों के हाथों में है उनका आतंकवादी समूहों से उनका संबंध है, और ऐसे लोग कितने जिम्मेदार हो सकते हैं, कितनी जिम्मेदारी के साथ इन परमाणु हथियारों को हैंडल कर सकते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखना चाहिए। तो एक कड़ी प्रतिक्रिया भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से इस वक्त आई है। ऋतु जी, चंद्रशेखर, क्या विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जो प्रतिक्रिया आई और सेना अध्यक्ष पाकिस्तान के जिस तरह की धमकी दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा पीछे जाके देखा जाए। सेना अध्यक्ष जो पाकिस्तान के हैं, उनकी 2 मुलाकातें जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हुई, उसके बाद उनका लगातार परमाणु बम की धमकी एक बार फिर भारत को देना, और भारत ने जिन बातों को बहुत साफ कर दिया है। हम जानते हैं कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ये सिर्फ एक शुरुआत है, ये बात भारत ने कही है। तो भारत ने भी संकेत साफ दे दिए हैं। इसके पीछे की क्या एक तरह से आपको साजिश दिखती है, क्या मंशाएं दिखाई दे रही हैं पाकिस्तान? साजिश से भी ज्यादा ये है कि पाकिस्तान पूरी तरह से खींचा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, आपने देखा कि कल ही जो भारत के वायुसेना प्रमुख थे उनकी ओर से ये बताया गया कि भारतीय वायुसेना प्रमुख ने कि पाकिस्तान को कितना बड़ा वहाँ पर नुकसान हुआ है। पाकिस्तान के 5 या 6 जेट भारत की ओर से गिराने की बात हुई थी। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं खींचा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान को जवाब दिया है, भारत की जो टेक्नोलॉजी है उसने पाकिस्तान को जवाब दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय जो सैन्य क्षमता है वो आत्मनिर्भर भारत की सैन्य क्षमता वहाँ पर दिखाई दी, भारतीय तकनीकी वहाँ पर दिखाई दी। और पाकिस्तान को इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान खींचा हुआ है। और यही कारण है कि जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो विदेशी धरती पर जाकर इस तरह के बयान दे रहे हैं। ऐसी धमकियां पाकिस्तान की आदत है चंद्रशेखर, लेकिन इन धमकियों को सिर्फ ये कह के भी नहीं नकारा जा सकता। क्या ये संकेत आने वाले समय में किसी बड़ी एक तरह से घटनाक्रम के हो सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि जिस तरह से सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी कुछ ऐसे बड़े संकेत दिए हैं, उनका ये कहना कि जल्द हो सकता है अगला युद्ध, ये कई बड़े संकेत दे रहा है। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से ये कोशिश रही हुई है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, अगर आप पाकिस्तान के हालात को आप देखिएगा तो पाकिस्तान आर्थिक तौर पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। और पाकिस्तान के अंदर आप इंटरनली देखिए, पॉलिटिकली आप देखिए तो पाकिस्तान के अंदर जो वहाँ का विपक्ष है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व में वहाँ पर आप देख रहे हैं कि लगातार इमरान खान जेल में है, लेकिन उनकी पार्टी लगातार, अभी कुछ ही दिनों पहले इमरान खान की जेल जाने के 2 साल वहाँ पर पूरे हुए थे, उनकी पार्टी की ओर से पूरे पाकिस्तान में बहुत बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया गया था। और वहाँ की जो सरकार है इसने बड़े
उसको दबाया, उस विरोध प्रदर्शन को दबाया। कई सारे जो इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो पाकिस्तान पॉलिटिकली अंदर से बहुत ख़राब स्थिति में है, आर्थिक तौर पर बहुत ख़राब स्थिति में है। पाकिस्तान के अफ़गानिस्तान के साथ संबंध ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस तरह के बयानात देकर अपने मुल्क को ये दिखाना चाह रहा है, भारत का डर दिखाना चाह रहा है, और ये पाकिस्तान लंबे समय से करता आया है। अभी भी पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान ने ऐसी ही कोशिश की थी, चाहे हम पहलगाम की बात करें या पहलगाम के बाद जो कुछ भी हुआ उसमें पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से बयान आए थे उसमें इसी तरह की कोशिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान की धरती पर जो आतंकवादी वहां से ऑपरेट करते हैं और भारत में आकर पहलगाम जैसे कांड करते हैं उनको जवाब दिया, बल्कि पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी सरकार को बहुत एक ऐसा जवाब दिया जिसको पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। हमने देखा कि कल ही जो भारत के वायुसेना प्रमुख हैं उनकी ओर से भी ये बताया गया कि पाकिस्तान को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं खींचा हुआ है। और जहां तक अमेरिका की बात है, इस पर भी पाकिस्तान, आप देखिए, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को वहां पर कहीं ना कहीं टेबल पर रखा है। बलूचिस्तान में जो तेल की बात हो रही है, शैल गैस की बात वहां पर हो रही है, या रेयर अर्थ मेटल की बात हो रही है, उनका वो अमेरिका के साथ वहां पर समझौता कर रहा है उनको लेकर के। और जो बलूचिस्तान के लोग हैं, जो बलूच लोग हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की धरती नहीं है, पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है इसका समझौता अमेरिका के साथ करने का। लेकिन पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही है कि इस तरह के समझौतों से चाहे चीन को या अमेरिका को इस बलूचिस्तान के इलाके में लाया जाए, ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने जो बलूचों के ऊपर वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं या बलूच जो अलगाववाद की बात करते हैं वो आवाज़ वहाँ पर न जाए, बल्कि उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो इन आवाज़ों को सुनता है, इस पर प्रतिक्रिया जताता है, वो खुद पाकिस्तान के साथ इन्वॉल्व हो जाए। तो पाकिस्तान इस तरह की रणनीति पर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान खींचा हुआ है बुरी तरह से, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत से उसको बहुत करारी मार पड़ी है और लगातार अब ये सामने भी आ रहा है। जी चंद्रशेखर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी अंदरूनी राजनीति में ही उलझा हुआ है और उसी में सर्वाइवल का एक तरह से वो इस समय संघर्ष कर रहा है, जहां एक तरफ BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक लंबे समय से पाकिस्तान से अलग होने की डिमांड कर रही है, संघर्ष कर रही है। ऐसे में अमेरिका के साथ 2 बार बातचीत के बाद अमेरिका से ही इस तरह की परमाणु धमकी देना भारत को, क्या चंद्रशेखर इसको इस लिहाज से देखना जरूरी हो जाता है कि अमेरिका के साथ भारत को लेकर जिस तरह से ट्रेड डील हो रही है उस बीच आसिम मुनीर का वहां पहुंचना और इस तरह के धमकी भरा संदेश देना भारत को, ये एक सधी हुई रणनीति अमेरिका पाकिस्तान के साथ मिलकर कर रहा है, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा मसला रहा जिसमें पाकिस्तान एक तरह से अलग थलग पड़ता दिखाई दिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन अमेरिका इस बीच ऐसा एक साथी पाकिस्तान का रहा जिसने न साथ छोड़ा भारत का और ना ही पाकिस्तान का साथ छोड़ा। तो अमेरिका अपनी भूमिका या फिर अपने को बार्गेन करने को पाकिस्तान को साथ लिए लगातार खड़ा है आतंकवाद जैसे मसले पे भी। बिल्कुल, देखिए, इस वक्त अगर आप हालात देखिए तो थोड़ा बहुत जो भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर के थोड़ी सी तनातनी बनी हुई है। हालांकि इस पर भी कई सारे चैनल्स के मार्फत बातचीत चल रही है और ये हो सकता है कि ये मामला आने वाले दिनों में सुलझ जाए, लेकिन पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि इस वक्त इसका फ़ायदा उठाया जाए। और यही कारण है कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इस वक्त अमेरिका में हैं और अमेरिका में जाकर के वो भारत विरोधी वहाँ पर बयान दे रहे हैं। वो उस पूरा जो जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और अमेरिका के सामने भी, जैसा अभी आपकी हमारी बात हुई थी कि बलूचिस्तान को लेकर के एक गलत जानकारी अमेरिका के सामने पाकिस्तान ने रखी है, वो लगातार जो बलूचिस्तान के लोग हैं उस बात को वहाँ पर कहते रहे हैं। तो इस सब के बीच पाकिस्तान की जो स्थिति है, चाहे आर्थिक तौर पर या सामरिक तौर पर या राजनीतिक तौर पर, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं भारत विरोधी भावनाएं भड़काकर, भारत विरोधी बयान देकर अपने देश में अपने जो उनके देश के लोग हैं उनके सामने एक नरेशन बनाने की कोशिश कर रहा है और उसी की कोशिश फील्ड मार्शल आसिम मुनीर यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि भारत जो है किसी भी तरह के परमाणु ब्लैकमेल के आगे झुकेगा नहीं। और साथ ही साथ भारतीय विदेश मंत्रालय ने ये कहा है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखना चाहिए कि अगर किसी देश के पास परमाणु हथियार हैं तो उस देश को जिम्मेदार होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से फील्ड मार्शल आसिम
मुनीर हैं या पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान का जो सेना प्रतिष्ठान है, वो जिस तरह से लगातार छोटी छोटी बातों पर परमाणु हमले की धमकियां देना, परमाणु ब्लैकमेल करना, ये करते रहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखना चाहिए कि क्या ऐसे लोगों के पास परमाणु हथियार होने चाहिए जिनके आतंकवादी समूहों से जिनके संबंध हैं और जिनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बयान भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से दिया गया है। साथ ही साथ ये चंद्रशेखर, ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की उस सैन्य ताकत को भारत आंक चुका है, दुनिया देख चुकी है, जब पाकिस्तान को अपनी रक्षा करने के लिए चीन और तुर्की का सहारा लेना पड़ा था। ऐसे में ट्रेड डील को लेकर और जिस तरह से जो टैरिफ अमेरिका लगा रहा है, 50% टैरिफ का ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप ने कर दिया है, जो लागू होगा 21 अगस्त से। तो इस दौरान ये समय है, क्या ये अमेरिका की एक और आर्म ट्विस्टिंग ही है, जिस तरह से 50% टैरिफ किया और अब अमेरिका के आसिम मुनीर को अपने आप बुला के इस बात की धमकी दिलवाना कि एक बार फिर परमाणु हथियार की धमकी देना? देखिए, अभी इसको इस तरह से देखना थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि अमेरिका ने ज़रूर भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगाया है, लेकिन उसमें से 25% टैरिफ है, उसके अलावा रूस से तेल खरीदने का मामला है। तो ये ऐसे मामले हैं जिन पर अभी आने वाले दिनों में आप देखिए कि इसी शुक्रवार को अलास्का में प्रेसिडेंट ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच एक बैठक भी होने वाली है। तो एक तो रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने का मसला है, उसको लेकर के जो वैश्विक राजनीति है वो चल रही है। ट्रंप भी उस राजनीति के तहत कई सारे कदम उठा रहे हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान का इतिहास रहा है, पाकिस्तान ने कभी कोई मौका नहीं छोड़ा है और पाकिस्तान को अभी लगता है कि कहीं न कहीं टैरिफ को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच में संबंध थोड़ा तनातनी की ओर जा रहे हैं। तो इस मौके का फायदा का फायदा क्यों ना उठाया जाए? तो पाकिस्तान एक तरह से अपनी कश्ती इसमें इस एक तरह से ट्रबल वाटर्स में चलाना की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर, पूरी जानकारी के लिए इस मसले पर। और इस बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।